Good morning, students. Today we will study lens and its type. In fact, today we will study convex lens. Today we will define principal focus and focal length of a convex lens. We will also study why a convex lens is called as converging lens. We will do the rules of image formation in convex lens, and we will few cases of image formation in convex lens. Now, before defining convex and concave lens, let us understand what is the meaning of lens. What do you mean by lens? How could you define lens? Listen. A lens is a piece of transparent material. A lens is a piece of transparent material, and in fact, the surface of lens is basically curved. Not essentially, but generally. In general, a lens is a piece of transparent glass having curved surface. How could you define lens? A glass is a transparent surface. A glass is used to make lens. Not necessarily all lenses are made of glass, but commonly lenses are made of glass, and you can define lens as a lens is a piece of transparent material having curved surface, or a lens is a piece of transparent glass having curved surface. How could you define lens? A lens is a piece of transparent glass having curved surface, or a transparent material having curved surface. Now listen, lens is transparent, mirror is opaque. Lens is also made of glass, a mirror is also made of glass, but one of the surface of mirror is coated, but none of the surface of a lens is coated. A lens is transparent while mirror is opaque. अब ध्यान से देखो ध्यान से, हम काफी सिंपली समझ रहे हैं. लेंस क्या है? एक ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर, इनफैक्ट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ स्ट्रक्चर, बट जनरली लेंस किसका बना होता है? ग्लास का. एक ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर का सरफेस बेसिकली कर्व होता, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लेंस. तो लेंस को मिस्टर डिफाइन, हाउ कुड यू डिफाइन लेंस? व्हाट इज लेंस? तो यू कैन से दैट अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग कर्व सरफेस. नाउ सिंस द सरफेस ऑफ लेंस इज कर्व, lens are spherical, and two common type of lens are convex lens and concave lens. What are the two type of lens? Lens can be of two type. It can be convex, it can be concave. मिरर भी दो तरीके का होता था, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. लेंस भी दो है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस. देखो चेंज कैसे आएगा. कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉन्केव लेंस है. क्या हम डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अंडरस्टैंड. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है. ध्यान से देखो, ये इसका मिडिल पोर्शन है. और ये इसका एज है. डिफरेंस क्या है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में? ये डेफिनेशन भी हो जाएगा इसका. ये इसका मिडिल पार्ट है और ये इसका एज है. देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस और स्फेरिकल लेंस विच इज थिकर एट द मिडिल. इसका मिडिल पोर्शन थिकर होगा और एज कॉर्नर शेप होगा, इसका एज थिनर होगा. उस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस. मिडिल पोर्शन थिकर और एज थिनर. कंपैरिजन में अगर कॉन्केव को देखें तो इसका मिडिल पोर्शन कंपैरेटिवली थिनर है एज से. इसका मिडिल पोर्शन क्या है? थिनर. और इसका एज क्या है? ठीक है. ये ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स लेंस में हम क्या देख रहे हैं? अ लेंस हैविंग मिडिल पार्ट थिकर एंड एज थिनर इज कॉल्ड convex lens, while a spherical lens having middle section thinner and edge thicker is called concave lens. Yes or not? Okay. How could you define lens? A lens is a piece of transparent glass having curved surface. How could you define convex lens? A spherical lens having middle portion thicker and edge thinner is called convex lens, and a spherical lens having middle part thinner and edge thicker is called concave lens. Now, listen. We have studied a spherical mirror as concave and convex mirror. Concave mirror was converging mirror. Why? We have discussed it. And convex mirror was diverging. Here, a lens is converging, a lens is diverging, convex lens is converging lens. While a concave lens is diverging lens. ये बात समझ में आया यहाँ तक?
सबका आंसर मिलेगा। क्यों? इसका आंसर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग लेंस और टाइप्स पढ़े। क्या क्या लेंस को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग कर्व सरफेस इज कॉल्ड लेंस, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। हाउ कुड यू डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस? अ स्फेरिकल लेंस हैविंग middle portion thicker and edge thinner is called convex lens, and a spherical lens having middle portion thinner and edge thicker is called concave lens. Okay. दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एक स्फेरिकल ग्लास लिया, ध्यान से देखो, ग्लास कटर से कट किया। ओके, तो ये दो सेक्शन मिला, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। इसका दूसरा पार्ट ये होगा ना, ये दो सेक्शन मिला। अब इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करो, इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करो। हम दो तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेक्शन, दोनों के इनर को हम एक साथ ज्वाइन किया, ये इनर को एक साथ ज्वाइन किया, और ये दोनों के आउटर को एक साथ ज्वाइन किया। ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा, है ना। देखो ध्यान से, हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को अ लेंस फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द इनर पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड convex lens, and when we join outer part of the spherical glass the lens is concave. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव का बता दिया जा चुका है। कॉन्वेक्स लेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ स्फेरिकल लेंस हैविंग इनर सरफेस, सॉरी, अ स्फेरिकल लेंस हैविंग मिडिल पोर्शन थिकर एंड एज थिनर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। एट द सेम टाइम अ स्फेरिकल लेंस हैविंग मिडिल पोर्शन थिनर एंड एज थिकर इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। यू शुड नो इट, है ना। अब आगे, अब हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। Now we will define optical center and principal axis of a spherical lens. Listen. This is convex lens. Why this is convex lens? Middle portion thicker and edge thinner. This is, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये कॉनकेव क्यों है? क्योंकि इसका मिडल एज के कॉम्परेटिवली थिनर है और एज थिकर है। ध्यान से देखो, ये कौन सा लेंस है? ये समझना पड़ेगा, ये याद रखो। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये now we have to define optical center and principal axis of a spherical lens, and listen, the optical center of lens is represented by capital O. Okay, the center of the mirror is pole represented by capital P, while the optical center is the center of lens. How could you define optical center? The center of the lens is called optical center, it is denoted by capital O. इस लेंस का सेंटर माना ये है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इस लेंस का सेंटर ये है, तो माना ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन समझ में आया? नोट्स में लिखा भी गया है। हाउ कुड यू डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। हाउ कुड, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस? द सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O. नाउ वी हैव टू डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन लेंस, इन फैक्ट इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस. Here also optical center is the center of the lens, a point on the lens. Now an infinite line can be passed through a point, but एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन को पास कर सकते हैं। बस ऑप्टिकल सेंटर से पास करता वो लाइन जो लेंस को दो इक्वल हाफ में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा हो, या फिर जो दोनों फेस से परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? A line passing through optical center of the lens which is perpendicular to both the face of the lens is called principal axis. ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता था, पर ये लाइन लेंस को दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा, और इनफैक्ट ये दोनों फेस से क्या है? परपेंडिकुलर। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर रहा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, और ये फिर से दोनों फेस से क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन कौन सा लाइन होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया? हाउ कुड यू डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर? बोलो, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? A straight line passing through optical center which is perpendicular to both the face of the lens is called principal axis. Okay, now अब हम लोग का सिलेबस अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये अब तक बेसिक था, यहाँ से बहुत तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डिफाइन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। लेकिन अब हम सिलेबस में एंटर कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं ये है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? हम इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखो क्यों, कैसे। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। वही चार चीज हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, देन वी विल डू इमेज फॉर्मेशन, एंड लास्टली वी विल स्टडी द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लिसन, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। बोलो, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसपेरेंट? मिरर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस और नॉट? अ लेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लिसन केयरफुली। This line representing principal axis, this line representing optical center. क्या यहाँ भी फ्रंट और बिहाइंड होगा क्या? नहीं, यहाँ दोनों पार्ट ट्रांसपेरेंट है, दोनों पार्ट फ्रंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे वन साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस का जिक्र करेंगे हम, आगे बताते कैसे चेंज होगा। मानो अब ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सोर्स ऑफ लाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा लेंस पे। ये सभी इंसिडेंट रे हैं, ये सभी इंसिडेंट है 1 2 3 4 इनफिनाइट इंसिडेंट है। ये किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब देखो, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट अपने पास से क्या होगा? डेविएट होगा, वापस तो नहीं होगा ना, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा ऑफकोर्स, पर अधिकतर पार्ट जो लाइट वेव का वो सामने की ओर दूसरे मीडियम एंटर करेगा, पर क्या वो स्ट्रेट पाथ से जाएगा? नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। ये तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट हैपन। नाउ लिसन, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो सभी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सामने की ओर में दूसरी ओर मिरर के लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। बात समझ में आया क्या? हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। ये कॉन्वेक्स लेंस है, सोर्स ऑफ लाइट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कर रहा। ये रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ओके। मेरे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो दूसरी ओर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो। हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? All those rays of light which are parallel to principal axis and convex lens, after refraction from the lens, converge at a point on principal axis on the other side of the lens. That point is called principal focus, represented by capital F, and the distance between optical center and focus is called focal length, denoted by small f. Yes or not? Now listen carefully. क्या प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर सकते हैं ना? वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। मिरर से रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा, और उसी पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये कन्वर्ट दूसरी तरफ कर रहा, ये फोकस, जैसा ना, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल, ये पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा। माना ये भी एक रे ऑफ लाइट है, यही पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, कन्वर्ज कहाँ पे करेगा? फोकस पे। यस और नॉट? अब लेंस का तो दोनों पार्ट फ्रंट है, ट्रांसपेरेंट है, सोर्स ऑफ लाइट इस लेफ्ट भी हो सकता है या राइट भी। तो मानो अब पैरेलल रे ऑफ लाइट इस तरह आ रहा, तो इसका फोकस किधर होगा? ये या ये सामने की ओर। ये रे ऑफ लाइट किधर से इधर कन्वर्ज करेगा। एक लेंस का कितना फोकस होगा? 2। एक मिरर का कितना फोकस होता है? 1। मिरर ओपेक है। लेंस का कितना फोकस होगा? 2। लेंस का 2 फोकस क्यों है? क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ से, लेंस के दोनों तरफ से रे ऑफ लाइट आ रहा, दोनों का कन्वर्जिंग होगा दूसरी तरफ। ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ट इस तरफ कर रहा, ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ट इस तरफ कर रहा। लेंस का 2 फोकस है, उसको F1 और F2 या F या F' से हम डिनोट करेंगे आगे। यहाँ तक समझ में आया? पर ये बात हमेशा याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का जितना डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हमेशा लेंस का कन्वर्जिंग पावर सेम होगा, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन कर पाएंगे। बोलो, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होगा बताओ?
हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल फोकस को कि a ray of light which is parallel to principal axis in convex lens after diffraction converge at a point on principal axis on the other side of the lens. That point is called principal focus and the distance between optical center and focus is called focal length. Now point number 3, a convex lens have real focus which mirror have real focus, concave mirror है ना. आंसर दिया जा चुका, क्यों? क्योंकि लाइट ओरिजिनली फोकस से पास करता था, याद है ना. कॉन्केव मिरर में रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ओरिजिनली कन्वर्ज हो रहा था कॉन्केव मिरर में. लेकिन लेंस के केस में रियल फोकस किसका होगा? कॉन्वेक्स लेंस का. और कॉन्वेक्स लेंस है रियल फोकस. व्हाई कॉन्वेक्स लेंस है रियल फोकस? क्योंकि ये सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन के बाद ओरिजिनली फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है. ओरिजिनल कन्वर्ज हो रहा है, ये ओरिजिनली मीट कर रहा फोकस पे, इसका फोकस क्या होगा? रियल. कॉन्केव लेंस में हम देखेंगे वहाँ पे ओरिजिनली मीट नहीं करेगा, वो वर्चुअली दूर जाता प्रतीत होगा. तो कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होगा? वर्चुअल. कॉन्वेक्स लेंस ओरिजिनली ये मीट कर रहा है फोकस पे ना, इसका फोकस क्या होगा? रियल. विच लेंस है रियल फोकस? यस, convex lens. And lastly you should note that a focal length, the focal length of convex lens is positive. Which mirror है पॉजिटिव फोकल लेंथ? कॉन्केव और कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स मिरर है ना, हम पढ़ चुके हैं. इसी तरह लेंस में भी अगर देखें तो किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा? कॉन्वेक्स लेंस का. क्यों होगा? हम साइन कन्वेंशन से डिस्कस करेंगे. तो मैं यहाँ देख नहीं सकता कि यहाँ पे रेफरेंस डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा और ये इंसिडेंट का डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट का डायरेक्शन है, इसे डायरेक्शन डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं ना. फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा? कॉन्वेक्स लेंस का. तो यहाँ पे तुमको इस सेक्शन में 4 पॉइंट समझ में आया. पहला, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ का डेफिनेशन तुम डिफाइन कर सकता. ऑल दोज रे ऑफ लाइट व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कन्वर्ज at a point on principal axis on the other side of the lens. That point is called principal focus. The distance between optical center and focus is called focal length. क्यों कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है? पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर होगा. और फिर हम ये देख चुके कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता. और लास्टली हम ये भी देख पा रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नोट्स में देखो कुछ भी यही सब पॉइंट लिखा गया, कोरिलेट करो और याद करो सभी चीज़ों को. याद हो गया तो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. अब हम रूल्स देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन का. अब हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस. There are 3 common rules of image formation in convex lens. We will discuss one by one. Let us concentrate. देखो डिजाइन कैसे करें कॉन्वेक्स लेंस का. ये ऑप्टिकल सेंटर, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना. ये बना पाएंगे स्ट्रक्चर. अब देखो डिवाइडर के किसी भी यूनिट का इक्वल मेजरमेंट लो. एक ठीक है, दो लेना है उधर, F और 2F. फिर से देखो इधर भी F और 2F. ये हमेशा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. ये F 2F, ये F, ये 2F. देखो F रिप्रेजेंट फोकस, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर फोकस का फोकल लेंथ. तो जितना फोकल लेंथ उतना डिस्टेंस हम इधर एक्सटेंड किए. ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. ये भी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. अब कन्वेंशन के लिए हम लेफ्ट साइड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओरिजिनली. F और 2F से उसको F डैश और 2F डैश. रूल 1 क्या है? ध्यान से देखो. सेम ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर? ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ना. तो सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा. क्या ये रूल समझ में आया? ये रूल 1 है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स लेंस में. तुम लिखा भी है नोट्स में इस तरह कि a ray of light parallel to principal axis in convex lens after refraction passes through principal focus. तो ये रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? रिफ्रैक्शन किससे पास कर रहा है? फोकस से. वो सभी रे ऑफ लाइट या वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास करेगा? फोकस से. ये बात समझ में आया ना. अब हम रूल 2 का बात कर रहे हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे? रूल 2. अधिकतर बच्चे जब इमेज फॉर्मेशन या रूल लिखते तो एरो देना छोड़ देते. ये एरो काफ़ी महत्वपूर्ण है. एरो नहीं देने पे एग्जाम में हाफ मार्क्स कटने का प्रावधान है. फिर इक्वल डिस्टेंस पे रूल लेना. देखो रूल 2 क्या? रूल 1 समझ में आया. और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. नाउ लिसन, रूल 2 ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस. नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर
अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, इंसिडेंट रे किससे पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो स्ट्रेट चला जाएगा। ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा, स्ट्रेटली इसी पास से चला जाएगा। ओके, मानो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास कर जाएगा। वो सभी रे ऑफ लाइट, वो रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास कर रहा हो, वहाँ पे हम कोई चेंज पाथ में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो स्ट्रेटली ही चला जाएगा, वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। क्या रूल 2 समझ में आया? और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन goes straight and no change of path in light takes place। केस 4 में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। whenever ray of light fall perpendicularly on the boundary of medium no change in the path of light takes place। हम बता चुके ना, और क्यों? क्योंकि whenever ray of light falls perpendicularly on the boundary of a medium each part of light wave reaches the boundary of medium at the same time enter the second medium at the same time and thus जो भी लाइट वेव है सबका का स्पीड एक वक्त में चेंज हो रहा है, एक ही इंस्टेंट पे चेंज हो रहा, वहाँ पे हम किसी वहाँ पे पाथ में हम कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे। क्या रूल 1 रूल 2 क्लियर है? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगा, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा तो वो स्ट्रेटली उसी पास से रिटर्न हो जाएगा। लास्ट रूल 3। नाउ रूल 3 इज द कन्वर्स ऑफ रूल 1। रूल 1 में हम क्या पढ़े बताओ? कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास कर रहा, अब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा। अब रे ऑफ लाइट किससे पास करेगा? फोकस से। तो अगर इंसिडेंट रे ध्यान से सुनो, अगर इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास कर रहा हो तो वो पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। माना ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल 3 है। A ray of light passing through focus of convex lens after refraction become parallel to principal axis and this is rule 3 of image formation in convex lens। क्या क्या पढ़े हम? देखो रूल 1, a ray of light parallel to principal axis after refraction passes through principal focus। मानो ये भी ray of light, क्या ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? ये रिफ्रैक्शन किससे पास करेगा? फोकस से, है ना। रूल 2, a ray of light passing through optical center of a convex lens after refraction goes straight। ये ray of light क्या ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है? स्ट्रेट इसी पास से चला जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या है इमेज फॉर्मेशन का? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मानो ये रे ऑफ लाइट क्या ये फोकस से जा रहा है, ये पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। इन 3 रूल्स के बेस पे अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले एक बेसिक कंसेप्ट। Now listen, which mirror or widely used mirror? Concave mirror. Why concave mirror or widely used mirror? Because concave lens can produce each kind of image, either magnified, either same side or diminished, or either real or virtual. Now again, a convex lens is a widely used lens. Why a convex lens is widely used lens? Because a convex lens can produce each kind of image. We will show it in image formation. A convex lens can produce either real or virtual image. It can produce either magnified or diminished image or an image having same size as that of object. Only a convex lens can produce a magnified image. इसका वाइड एप्लीकेशन होगा, जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पे हम इसका यूज करेंगे। ओके, हम डिफेक्ट ऑफ विजन में हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखो ध्यान से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2f डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोकस को, ये 2f डैश। अब यहाँ पे मिरर से परे हट के देखें तो मिरर में हम किसी एक ही तरफ ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। ओके, हम लेंस में किसी भी तरीके पे इमेज ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, इमेज फॉर्मेशन उस तरीके से चेंज हो जाएगा। जनरली हम इस कन्वेंशन में जो पढ़ रहे तो हमेशा लेंस के इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करेंगे। ओके, तो क्या पॉसिबल केस हो सकता है इमेज फॉर्मेशन का? अलग अलग जो केस हो सकता है, देखो, ऑफ कोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनी पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इट कैन बी प्लेस्ड एट फोकस। Object can be placed at focus in case number 2. Then after, it can be placed at any point lying between f and 2f dash. It can be placed at 2f dash. It can be placed beyond 2f dash, and lastly, it can be placed at infinity. What is the 6th possible case of image formation in convex lens? Listen. In case first, the object will be placed between optical center and focus of a convex lens. In case 2, the object will be placed at focus of convex lens. In case 3, the object will be placed between f and 2f of convex lens. In case 4, it will be placed at 2f of convex lens. In case 5, it will be placed beyond 2f, and lastly, it will be placed at infinity. Okay. यही 6 केस का इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम इस तरफ रखें या उस तरफ रखें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे ध्यान से सुनो।
एक कॉन्केव मिरर के लिए जिस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर रेफरेंस पॉइंट था, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पॉइंट के हेल्प से हम सभी कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह एक लेंस में 2f काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2f किस रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जब तक एक ऑब्जेक्ट 2f से पहले रखा गया, until an object is placed before 2f of a convex lens, the height of image or the size of image will be more than the size of object, and for such an image the magnification will be more than 1, such an image will be magnified। ये बात को समझो। एक लेंस के केस में जब तक ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में कहीं पे भी रखें, तीन केस है, तीन पॉसिबल केस है, आइदर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, एट फोकस और बिटवीन f एंड 2f, यही तो तीन केस है ना। इन तीन केस में हमेशा इमेज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, और क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वैसे इमेज का मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, वैसे इमेज को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। केस नंबर 2 में जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को 2f पे रख रहे हैं, whenever an object is placed at 2f of a convex lens, the magnification will be 1. What is the meaning of 1? It means the size of image will be same as the size of object. मतलब अगर हमको लेंस में सेम ऑब्जेक्ट के साइज के सेम साइज इमेज चाहिए, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, 2f पे, और जब भी हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रखें तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। इनफैक्ट ये -1 होगा क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता, हम डिस्कस कर रहे हैं। As the object is placed beyond 2f at any point beyond 2f, the size of image will be less than the size of object. For such an image, the magnification will be less than 1 and the image will be diminished. Okay? तो यहाँ तक ये बात समझ में आया, साइज के रेस्पेक्ट हम कंपेरिजन कर चुके ना। इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकता, सेम साइज भी हो सकता और डिमिनिश भी हो सकता। कब तक, अगर ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में कहीं पे भी रखे तो इमेज मैग्नीफाइड होगा, 2f पे रखा तो सेम साइज होगा, 2f के बाद रखे तो डिमिनिश होगा। ये तो देख चुके। एक बात और, कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता। ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 केस है, सिर्फ एक केस के लिए कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, बाकी सभी केस के लिए रियल इमेज फॉर्म करेगा। जब तक एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया, तो फोकल लेंस एक लेंस के फोकल लेंस से पहले रखा गया, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंस से कम है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज वर्चुअल होगा और उस इमेज के मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बाकी केस के लिए, केस 2 से लेके बाकी सभी केस के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। मैं कहने का मतलब इमेज रियल होगा। तो अगर हमको कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज चाहिए तो हम फोकल लेंथ के बाहर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ पे इमेज कौन सा बनेगा, रियल। लेकिन अगर हमको वर्चुअल इमेज चाहिए तो फोकल लेंथ से हम पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहाँ पे इमेज क्या होगा, वर्चुअल। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता, वर्चुअल भी फॉर्म कर सकता, मैग्नीफाइड भी फॉर्म कर सकता, सेम साइज और डिमिनिश भी। इसका यूटिलाइजेशन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। अब लास्टली एक बात, लास्ट में इमेज फॉर्मेशन हम कल अगली क्लास में करेंगे, केस 1 से केस 6 और कॉन्केव लेंस रिमूविंग खत्म कर देंगे यूज के साथ। अब आगे ध्यान से, उससे पहले देखो यहाँ पे रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट क्या होगा। अब तक हम रियल वर्चुअल इमेज के लिए हम कंसेप्ट क्या देखें, पहला जो कॉमन कंसेप्ट है कि इफ इमेज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन और रिफ्लेक्टेड लाइट द इमेज विल बी रियल। ये कंसेप्ट यहाँ भी वैलिड है, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिनल इंटरसेक्शन हो रहा, उस इमेज को हम रियल बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड ओरिजिनली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो वर्चुअली मीट करता प्रतीत हो रहा, उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। ओके, लेकिन पॉइंट नंबर 2, the real image is formed in front of the mirror, lens and virtual image formed behind the mirror। ये कंसेप्ट यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे कोई फ्रंट और बिहाइंड पार्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लेंस के लिए, लेंस का दोनों पार्ट ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे रियल और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट इस तरह चेंज होगा। ध्यान से देखो, हम वहाँ पे अगर ओरिजिनल इंटरसेक्शन वर्चुअल इंटरसेक्शन के अलावा इस तरह भी समझ रहे थे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा। अगर मिरर के सामने हो रहा तो उस इमेज को हम क्या बोले थे, रियल, और पीछे हो रहा तो वर्चुअल। यहाँ पे तो पीछे और आगे का कोई केस नहीं है ना। तो मानो जिस तरफ हम लेंस के जिस साइड हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, उसी साइड अगर इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, है ना। अगर इमेज का फॉर्मेशन जिधर ऑब्जेक्ट है लेंस के जिस, अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट में ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। ऑफ कोर्स यहाँ वर्चुअल इंटरसेक्शन ही हुआ रिफ्रैक्टेड रे का। और अगर हम लेंस को लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और राइट में अगर इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल। इन सभी पॉइंट को हम वेरीफाई करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू। हो गया सर।